ہم ریاست اور عوام کے درمیان ایک ایسے سماجی معاہدے پر یقین رکھتے ہیں جہاں پر ان کے حقوق کا تحفظ ہو۔ امریکہ کے ساتھ مثبت اور تعمیری تعلق ہے۔ امریکہ ایک بڑی طاقت ہے جس نے اپنے علم اور ٹیکنالوجی سے دنیا کو منور کیا۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ مضبوط شراکت داری چاہتا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا ہارورڈ یونیورسٹی کے طلباء سے ملاقات۔ بین الاقوامی روڈ ٹرانسپورٹ کے تحت پاکستان اور چین کے درمیان تجارت۔ پہلی مرتبہ اقوام متحدہ کے بین الاقوامی روڈ ٹرانسپورٹ کنونشن کے تحت سامان کی سرحد پار نقل و حمل کا آغاز۔ کارگو ٹرکوں کا پہلا قافلہ پاکستان روانہ۔ منصوبے کے تحت خشکی میں گھرے وسط ایشیائی ریاستوں سے رابطہ قائم کرنے کے لیے ایک مؤثر اور محفوظ زمینی راستے کی بھی فراہمی ہوگی۔ ڈنمارک حکومت کی جانب سے قرآن پاک کی توہین سے متعلق قانون سازی قابل ستائش ہے۔ قانون سازی میں مذہبی اہمیت کی حامل چیزوں کے ساتھ نامناسب سلوک کو جرم قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان ڈنمارک کے ساتھ مشترکہ مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنے کا منتظر ہے۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کا ٹویٹ۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال قصور کا دورہ۔ ایمرجنسی سمیت مختلف وارڈز کا معائنہ کیا اور طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ تیمارداروں کی جانب سے زیادہ پارکنگ فیس لینے کی شکایات پر ایم ایس کو فوری ازالے کا حکم۔ مریضوں کو مفت ادویات کی فراہمی میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ محسن نقوی۔ دریائے ستلج میں ہیڈ اسلام اور گنڈا سنگھ کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب۔ ہیڈ اسلام میں پانی کا بہاؤ 1,51,000 کیوسک، گنڈا سنگھ پر پانی کا بہاؤ 1,22,000 کیوسک۔ دریاؤں، بیراجوں، ڈیمز اور نالوں میں پانی کے بہاؤ کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ شہری دریاؤں، ندی نالوں میں نہانے اور سیر و تفریح سے گریز کریں، ڈی جی پی ڈی ایم اے۔ پاکستان آرمی کی سیلاب زدگان کے لیے بہاولپور ڈویژن کے نشیبی علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری۔ سیلاب متاثرین کے لیے فری میڈیکل کیمپس کا قیام، ریسکیو آپریشن سمیت فری راشن تقسیم۔ بڑی تعداد میں متاثرین کو مفت طبی امداد کی فراہمی بھی جاری۔ میلسی، چشتیاں، منچن آباد، پاک پتن، عارف والا، وہاڑی، لودھراں، بورے والا اور ہیڈ سلیمانکی کے علاقوں سے متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی کے طلباء کا جناح ہاؤس کا دورہ۔ طلباء کی 9 مئی کے پرتشدد واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت۔ بحیثیت قوم ہمیں عدم برداشت، شدت پسندی اور دہشت گردی کو رد کرنا چاہیے۔ افواج پاکستان ملک کی سلامتی اور استحکام کی ضامن ہیں، طلباء کا اظہار خیال۔ شہدائے پاکستان کو سلام۔ لانس نائک نذیر خان شہید 30 اپریل 2019 کو آپریشن رد الفساد کے دوران ضلع شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ لانس نائک نذیر خان شہید وطن عزیز کے دفاع کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کر کے آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بن گئے۔ لواحقین کا اظہار خیال۔ نیشنل میڈیکل یونیورسٹی کے طلباء و طالبات کا ملتان گرین کا دورہ۔ طلباء و طالبات نے ایک دن فوج کے ساتھ گزارا، یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول رکھے۔ طلباء و طالبات نے پاک فوج کے تربیتی معیار اور حربی طریقوں کو خوب سراہا۔ پاک فوج کے ساتھ دن گزارنے کا مقصد عوام اور فوج کے درمیان رشتے کو مزید مضبوط بنانا تھا۔ معروف بھارتی ماہر قانون پرشانت بھوشن نے مودی کے شیطانی منصوبے کا پول کھول دیا۔ مودی سرکار پلوامہ اور بالا کوٹ جیسی کارروائی کا دوبارہ ڈرامہ رچائے گی۔ 2024 کے انتخابات سے قبل رام مندر ایودھیا پر جعلی دہشت گرد حملہ کروا کر الزام پاکستان پر عائد کیا جائے گا۔ بھارتی فوج آزاد کشمیر میں جعلی زمینی کارروائی کر کے مودی کے انتخابات جیتنے کی راہ ہموار کرے گی۔ معروف بھارتی ماہر قانون۔ بھارتی ریاست تامل ناڈو میں ٹرین میں آگ لگ گئی، 10 افراد ہلاک اور 20 زخمی۔ حادثہ مدورائی ریلوے اسٹیشن کے قریب کھڑی سیاحتی ٹرین میں پیش آیا۔ دھماکہ گیس سلنڈر پھٹنے کے باعث ہوا۔ حکام۔ اٹلی کے شہر میلان میں گرمی کا 260 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ میلان میں 1763 کے بعد درجہ حرارت 33 ڈگری کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ جنگلات کی آگ کی وجہ سے جنوبی یورپ بیشتر حصہ مسلسل گرم ہے۔ یونان، اسپین، پرتگال، فرانس سمیت کئی ممالک میں درجہ حرارت 40 ڈگری تک جا پہنچا۔
پاکستان اور افغانستان کے درمیان ون ڈے سیریز تیسرا اور آخری میچ آج کولمبو میں کھیلا جائے گا۔ میچ دن 2:30 سے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست 3 میچوں کی سیریز میں پاکستان کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری۔ ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن حمزہ خان کی چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی سے ملاقات۔ نیول چیف نے حمزہ خان کو ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں شاندار فتح پر مبارکباد دی۔ حمزہ خان نے 36 سال بعد ورلڈ جونیئر چیمپئن شپ جیت کر ملک و قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی۔ اور بداپیسٹ ہنگری میں ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ 7واں روز۔ امریکہ، جمیکا، وینزویلا اور جاپان کے ایتھلیٹس طلائی تمغے جیتنے میں کامیاب۔ مردوں کے 200 میٹر فائنل میں امریکہ کے نوآ لائلز اور خواتین 200 میٹر سپرنٹ ریس میں جمیکا کی شریکا جیکسن نے سونے کا میڈل حاصل کیا۔ ٹرپل جمپ کا طلائی تمغہ وینزویلا کی پولیمر روجاس، جبکہ جیولن تھرو کا گولڈ میڈل جاپان کی ہاروکا کیتاگوچی کے نام رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں دن 12 بجے کا خبرنامہ، اور میں ہوں مناظر حسین۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ خبرنامے میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ ہم ریاست اور عوام کے درمیان ایک ایسے سماجی معاہدے پر یقین رکھتے ہیں جہاں پر ان کے حقوق کا تحفظ ہو۔ امریکہ کے ساتھ مثبت اور تعمیری تعلق ہے، طویل المدت شراکت داری چاہتے ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے طلباء سے ملاقات کی تفصیل اکرام اللہ محسود کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے ہارورڈ یونیورسٹی کے طلباء کے ساتھ سوال و جواب کی نشست میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے پاکستان امریکہ تعلقات، درپیش معاشی چیلنجز اور جمہوری عمل کے تسلسل کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ ملک میں جمہوری عمل تسلسل سے جاری ہے۔ گزشتہ 15 سالوں میں 3 اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری کی۔ حکومت کی تبدیلی آئینی طریقے سے عمل میں آئی۔ The democracy gives guarantee to the strength of the parliament. And in Pakistan's case, last 15 years post 2008, we had 3 successive complete stints of parliament. And in Westminster model of democracy, you do change the governments through parliament, through constitutional means, and that has been the case in Pakistan. In order to avoid purge and a coup, you have to agree on this principle that the members of the parliament has the inherent right to emplace a government or replace a government. And in that you do realize that democracy is a process, not an event. We are committed and we understand that the performance and participatory idea of democracy is what is needed. We would encourage that. ملک کے معاشی مسائل کا ذکر کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ اخراجات اور آمدن میں توازن انتہائی ضروری ہے۔ معیشت کو دستاویزی شکل دینا ہوگی۔ The real foes are expenditure habit and the way we generate revenue. So if we want to survive as a society and a state, we have to alter both. Rationalize our expenditure the way we govern these people, and we have to change our ways. How do we generate revenue? We are a country whose tax ratio to its GDP is around 9%. We are trying to contribute in our limited stint, how to bring non-documented economy and enhance the tax network. پاکستان امریکہ تعلقات کے حوالے سے نگران وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ امریکہ ایک بڑی طاقت ہے جس نے اپنے علم اور ٹیکنالوجی سے دنیا کو منور کیا۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ مضبوط شراکت داری چاہتا ہے۔ I just had a meeting with the American ambassador in a very pleasant one. I had a brief interaction with the Foreign Office also. America is like an ocean.
and we have to swim in that ocean and the guests get best out of it, be it pearls or fish or anything, because it has so much to offer. If you have to remain connected with the global unfolding, particularly in the realm of technology, R&D, research and development, how could any nation or any society divorce itself from North America? No, it's not possible. And we are sane enough, we are rational enough to engage in this relationship. So we see United States as a big power. The rest of the world has it to be envious of the United States, or it has to learn and benefit from it. निगरान वजीर आजम ने कहा कि अच्छे मौके की तलाश में मुल्क से बाहर जाना कोई अनहोनी बात नहीं। 60 और 70 की दहाई में भारत से पढ़े लिखे नौजवान मुल्क से बाहर गए, लेकिन बाद में 30 साल बाद वही लोग अपने मुल्क का कीमती असासा साबित हुए। जरूरी है कि हमारे नौजवान जहां भी जाएं कामयाब हो। मुलाकात के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तुलबा ने वजीर आजम के साथ ग्रुप फोटो भी बनवाया। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 9 मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के 38 रुकनी वफ़द ने रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने इलाकाई सिक्योरिटी इश्यूज़ और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार पर इजहार ख्याल किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत दीवार की तरह खड़ा है। दुनिया को पाकिस्तान की कुर्बानियों को तस्लीम करना चाहिए। आर्मी चीफ ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और आबादी का तनासब तब्दील करने के इक़दामात से मुतालिक भी आगाह किया। पाकिस्तान के भरपूर वसाइल और सलाहियतों को उजागर करते हुए आर्मी चीफ ने शुरका पर जोर दिया कि वो क़याम के दौरान अपने तजुर्बात की बुनियाद पर पाकिस्तान को देखें। तुलबा ने तामीरी बातचीत के लिए आर्मी चीफ की दावत पर उनका शुक्रिया अदा किया। निगरां वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने ट्विटर पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान डेनमार्क की हुकूमत की तजवीज़ करदा कानून साजी को सराहता है। इस कानून साजी में मजहबी अहमियत की हामिल मामलात के साथ नामुनासिब सलूक को जुर्म करार दिया गया है। मुजवज़ा कानून साजी में कुरान पाक की तौहीन को भी जुर्म करार दिया गया है। निगरान वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि डेनमार्क के वज़ीर ख़ारिजा के साथ इस मामले पर खुशगवार अंदाज में तबादला ख्याल किया। डैनिश वज़ीर ख़ारिजा ने इन मजहबी हसास उमूर का एहतराम करने के लिए डेनमार्क की हुकूमत के मजबूत अज़्म का इआदा किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान डेनमार्क के साथ मुश्तरका मफादात को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। बैनुल-अक़वामी रोड ट्रांसपोर्ट के तहत पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिजारत का आगाज़ हो गया है। पाक चीन ट्रेड के आगाज़ के सिलसिले में काशगर युआन फोंग इंटरनेशनल लॉजिस्टिक पोर्ट कंपनी में तकरीब हुई, जिसमें NLC के नुमाइंदों, काशगर कस्टम्स के हुक्काम, काशगर म्यूनसिपल पार्टी कमेटी, काशगर म्यूनसिपल पीपल्स गवर्नमेंट, सिवाल लॉजिस्टिक और शेंज़ेन क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स एसोसिएशन के अहदेदारान ने शिरकत की। नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन का चीन की मारूफ कंपनी सेवा लॉजिस्टिक्स के साथ इश्तराक से पहली बार अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल-अक़वामी रोड ट्रांसपोर्ट कन्वेंशन के तहत सामान की सरहद पार नकलो हमल का आगाज़ किया गया है। इस मंसूबे के तहत खुश्की में घिरे वस्त एशियाई रियासतों से राबिता कायम करने के लिए एक मुअस्सर और महफूज ज़मीनी रास्ते की भी फराहमी होगी। ये अहम पेशरफ पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे की 10वीं सालगिरह के मौके पर अमल में आई। तकरीब से खिताब करते हुए ग्रेटर चाइना, जापान और कोरिया में ग्राउंड एंड रील के नायब सदर और सिवा लॉजिस्टिक्स के ग्लोबल क्रॉस बॉर्डर एंड मल्टी मॉडल लीडर केल्विन तांग ने काशगर से इस्लामाबाद तक TIR ट्रांसपोर्ट रूट की अहमियत को उजागर किया और उन्होंने पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी को बेल्ट एंड रोड मंसूबे के आला मयार का मिसाली नमूना करार दिया। तकरीब के अख्ताम पर कार्गो ट्रकों का पहला काफिला पाकिस्तान रवाना किया गया। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि निगरान हुकूमत का आइन में किरदार वाज़ेह है, हम अपने हलफ की पासदारी करेंगे। निजी TV के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम आइन और कानून का एहतराम करते हैं। हमारा काम नहीं है कि हम अदालती उमूर में, लॉ इन्फोर्समेंट के उमूर में मुदाखलत करें किसी के हक़ में या किसी की मुखालफत में। हमारा महदूद जो अख्तियार है, जिसका सबसे बड़ा जो मकसद है वो इलेक्शन कमीशन के पीछे खड़ा होना है, उनकी मदद करनी है,
ताकि जो भी तारीख वो दें इलेक्शन की, उस दिन इलेक्शन का सिर्फ इनेकाद ना हो, वो पुरअमन भी हो, वो मुनसिफाना भी हो, वो गैर जानिबदाराना भी हो, बिल्कुल, और वो शफाफ भी हो। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। इस वाक़े से जमहूरियत कमज़ोर हुई। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि हमें बिजली, गैस और ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफे का अदराक है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफे और रुपए की कदर में कमी की वजह से माशी मुश्किलात पैदा हुई। किफ़ायतशारी समेत ऐसे इक़दाम करना होंगे जिनसे मईशत बहाल हो। आइंदा हफ्ते माशी बहाली का मंसूबा पेश किया जाएगा। दरियाए सतलुज में हेड इस्लाम और गंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। तर्जुमान PTMA के मुताबिक हेड इस्लाम में पानी का बहाव 1,51,000 क्यूसेक, जबकि गंडा सिंह के मकाम पर पानी का बहाव 1,22,000 क्यूसेक है। सुलेमानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए चनाब, रावी और जहलुब में पानी का बहाव नॉर्मल है। तर्जुमान के मुताबिक दरियाओं, बैराजों, डैम्स और नालों में पानी के बहाव की मुसलसल निगरानी की जा रही है। शहरी दरियाओं, नदी नालों में नहाने और सैरो तफरीह से गुरेज करें। पाकिस्तान आर्मी की सैलाब ज़दगार के लिए बहावलपुर डिवीज़न के नशेबी इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। पाक आर्मी की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए फ्री मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन समेत फ्री राशन तकसीम किया जा रहा है और बड़ी तादाद में मुतासरीन को मुफ्त तिब्बी इमदाद की फराहमी भी जारी है। पाक फौज ने मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए मेलसी, चिश्तियाँ, मंजनाबाद, पाकपतन, आरिफवाला, विहाड़ी, लोधरा, बूरेवाला और हेड सुलेमानकी के इलाकों से मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। दरिया सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 20 फुट और अखराज 1,22,500 क्यूसेक है। सैलाब में घिरे अफराद के लिए अटारी के मुकाम पर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। तफसील जानेंगे मोहम्मद अशरफ से। दरिया सतलुज में सुलेमानकी के मुकाम पर पानी की आमद 96,600 क्यूसेक और अखराज 83,700 क्यूसेक है। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बायस 50 किलोमीटर उकाड़ा की हदूद से गुजरने वाले दरिया सतलुज से मुल्हिका 107 गाँव ज़ेर-ए-आब आए हैं, जिनमें से 80 गाँव मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। रेस्क्यू 1122 की 40 कश्तियाँ अटारी, पोरान, बाकर के मुहार, जमालकोट, पाना मुहार, हेड सुलेमानकी, द्राज के, मेलू शेहू का, नामा जींदे का, खैराबाद और रत्ते की में रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 885 लोगों का इनखला किया गया। साडे घरां ते पानी आस पास सारा पै गया है। कच्चियां बादियां से डिग पए ने घर मकान भी। सानू जेड़ा ना जी आज किश्तियां वाला उन्हां विचारा ले आंदा होता ਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਲ ਵੀ ਲੁੜ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਟਾਰੀ, ਹੁਣ ਰਹਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਸਹੀ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਹਿਸ਼ ਵੀ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर ने अटारी के मुकाम पर फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया। उन्होंने फ्लड रिलीफ कैंप में कायम रेस्क्यू मेडिकल कैंप, हेल्थ काउंटर, लाइफ स्टॉक काउंटर और सैलाब से मुतासरा इलाकों का भी मुआयना किया। ज़िली एमरजेंसी ऑफिसर जफर इकबाल चौधरी ने रेस्क्यू ऑपरेशन और लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने के मुतालिक ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 152 रेस्क्यूर रूटीन ड्यूटी के अलावा फ्लड ऑपरेशन में एमरजेंसी सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। मोहम्मद अशरफ, PTV न्यूज़, रिनाला खुर्द, उकाड़ा। दरिया सतलुज में लोधरा के मुकाम पर इस वक्त 1,30,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। सैलाब से मुतअद्दिद हिफाजती बंद टूट गए और हज़ारों एकड़ पर कपास की तैयार फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। 5,000 अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मज़ीद तफसील हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला डाहा से। जी अब्दुल्ला, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लोधरा में दरियाए सतलुज के मकाम पर इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है। महकमा पाशी के मुताबिक इस वक्त लोधरा के मकाम पर 1,30,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है, जिससे सैदीवाला, बस्ती चुटाला, शाहपुर फुल और बस्ती हुड़ा का बंद टूट गया, जिससे सैकड़ों एकड़ पर कपास की तैयार फसल ज़ेर-ए-आब आ गई हैं और घरों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया है, जिससे मिट्टी से बने कच्चे घर तबाह हो गए हैं। महकमा पाशी के मुताबिक अगले 2 से 4 घंटे मज़ीद 30,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला लोधरा की जानिब गामजन है और इससे मजीद नुकसान का खदशा बढ़ जाएगा। ज़िले इंतज़ामिया और रेस्क्यू 1122 बर वक्त इमदाद के लिए मौके पर मौजूद मुतासिरीन की इमदाद करने में मसरूफ़ अमल है। 5,000 के करीब सैलाब में फंसे हुए अफराद को रेस्क्यू करके फ्लड रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया है। कुछ हमारी हेल्प हुई है, 1122 वालों ने की है,
मज़ीद हमें हेल्प चाहिए क्योंकि हमारा सामान वगैरह हर चीज़ ख़त्म हो रही है। 1988 के बाद लोधरा के मकाम पर इस वक्त ये बड़ा सैलाबी रेला गुजर रहा है, जिससे लोधरा के 325 गांव ज़ेर आब आ गए हैं, जिससे हज़ारों की तादाद में लोग बेघर हुए हैं। ज़िले इंतज़ामिया ने हिदायत की है कि अवाम दरियाई इलाकों समेत नशेबी इलाकों से महफूज मकामात पर या हुकूमत पंजाब की जानिब से कायम करदा फ्लड रिलीफ कैंपों में मुंतकिल हो जाएँ। जी शुक्रिया अब्दुल्ला आपका हमें तफसीलात से अपडेट करने के लिए। भारत की जानिब से दरियाई सतलुज में एक बार फिर पानी का रेला छोड़ दिया गया है। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। भूकंप पतन के मकाम पर दरियाई सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। मजीद तफसील जान लेते हैं राना फैसल रहमान से। फैसल, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? भारत की जानिब से 2,80,000 क्यूसिक का रेला जो छोड़ा गया था दरियाई सतलुज में, उसके नुकसानात जो है थमे ना थे कि एक बार फिर दरियाई सतलुज में पानी जो है वो छोड़ दिया गया है और पानी की सतह जो है हेड गंगा सिंह पर जो है वो अब मुसलसल जो है सुबह से वो बुलंद होती दिखाई दे रही है। इसी तरह जो है पानी का रेला जो है हेड सलमान की और बहावल नगर से होता हुआ जो है वो हेड इस्लाम की तरफ बढ़ेगा। जो इससे कबल जो रेला जो आया था उससे काफ़ी नुकसानात हुए थे, लोगों के कई फसलें जो है वो पानी की लपेट में आ गई थी, कई घर जो है वो मुतासर हुए थे, कई घरों की बुनियादें हिल चुकी थी। लेकिन अब फिर जो है जैसे ही इतला मिली है कि भारत ने एक बार फिर पानी का रेला छोड़ दिया है, उसी तरह जो है इलाका मकीनों में तशवीश की लहर दौड़ गई है और लोग जो है वो अपनी मदद आप के तहत जो है वो नकल मकानी करने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है जैसे ही सैलाबी रेला दाखिल हुआ था बहावलनगर के हदूद में, उसी तरह जो है हालात बहुत संगीन हो गए थे। यहाँ पर अगर बात करें इस वक्त बहावलनगर भूखा पत्तन की, तो इस वक्त भूखा पत्तन पे तकरीबन 90,000 क्यूसिक का रेला जो है वो हेड इस्लाम की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर जो है कुछ ऐसी बस्तियाँ भी मौजूद हैं जिनका रास्ता जो है वो मुनक़ता हो चुका है। कई ऐसी बस्तियाँ हैं जिनका बिजली कनेक्शन जो है वो वापडा ने मुनक़ता कर दिया है क्योंकि ज़्यादा नुकसानात हो सकते हैं। इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने तकरीबन 34 स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। 11 तो स्कूल ऐसे हैं जिनमें रिलीफ कैंप जो है लगाए गए हैं और इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो पानी की नज़र हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया राना फैसल रहमान, तफसीलात से आप हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल कसूर का दौरा किया और एमरजेंसी समेत मुख्तलिफ वार्ड्स और मरीजों के लिए फराहम की गई तिब्बी सहूलतों का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों की भी इयादत की और हस्पताल में मुहैया करदा तिब्बी सहूलतों के बारे में इस्तफसार किया। मरीजों ने हस्पताल में फराहम की जाने वाली सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार किया। ताहम तीमारदारों ने वज़ीर आला से ज़्यादा पार्किंग फ़ीस चार्ज करने से मुतालिक शिकायत की। वज़ीर आला ने MS को ओवर चार्जिंग की शिकायत के फौरी इजाले का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि अमीर की तरह गरीब आदमी को भी मयारी इलाज मालजे की सहूलतें मिलनी चाहिए। मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि आम आदमी को इलाज मालजे की मयारी सहूलतों की फराहमी के लिए हस्पतालों के दौरे जारी रहेंगे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा है कि कारोबार और सनती तरक्की से मुल्क में समाजी तरक्की होती है। माशी तरक्की के लिए साजगार माहौल फराहम करना बहुत अहम है। लाहौर में पाए बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन अली हसाम असगर की क़यादत में एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अहदेदारों से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि माशी तरक्की से मुल्क व कौम की तरक्की वाबस्ता है, इसलिए कारोबारी हजरात से मुस्तकिल बुनियादों पर मिल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि साबिक़ दौरे हुकूमत में मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने और सनती तरक्की के लिए स्पेशल इकनॉमिक जोन के क़याम समेत अहम इक़दामात उठाए गए। इस मौके पर वफ़द ने गवर्नर पंजाब को मार्केटों और सनतों को दरपेश मसाइल समेत दीगर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान के तलबा और तालिबात ने मुल्तान गैरिजन का दौरा किया और एक दिन पाक फ़ौज के साथ गुजारा। तलबा और तालिबात ने पाक फ़ौज की हरबी सलाहियतों की तारीफ की और जवानों के हौसलों को सराहा। तफसील से आगाह कर रहे हैं ख्वाजा मोहम्मद कलीम। नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान के तलबा और तालिबात और असातिज़ा ने मुल्तान गैरिजन में यादगार शहदा पर हाज़िरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और शहदा की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। इस मौका पर तलबा और तालिबात को पाक फौज की मादरे वतन के लिए लाजवाल कुर्बानियों से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। तलबा और तालिबात को आर्मर्ड, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, इंजीनियरिंग, इन्फेंट्री और दीगर हथियारों से भी रोशनास कराया गया। तलबा और तालिबात बख्तरबंद गाड़ियों की सवारी, आर्मी हेलीकॉप्टरों के दिलकश फ्लाई पास्ट और तीर अंदाजी से भी महजूज हुए। तलबा को असाल्ट कोर्स का मुजाहिरा और फायरिंग के तरीक़ाकार बारे भी बताया गया। तलबा के पाक फ़ौज के साथ दिन गुजारने का मकसद अवाम और फ़ौज के दरमियान रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाना था। तलबा और तालिबात ने पाक फ़ौज के तरबियती मेयार और हरबी सलाहियतों को खूब सराहा।
आर्मी कैंप में हमने नई नई चीज़ें देखी, ऐसी चीज़ें देखी जो हमने पहले नहीं देख चुके थे। हमारी आर्मी किसी से कम नहीं, लेटेस्ट मिसाइल्स, लेटेस्ट टैंक्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ लेस और किसी भी नागहानी आफात के साथ साथ दुश्मनों का भी मुकाबला कर सकती है। यहाँ पे हमने टैंक की सैर की है, फायरिंग की है और हमने यहाँ फौज आर्मी की ट्रेनिंग देखी है। ये सब देखकर बस मुझे एक जुमला याद आ रहा है कि ये एक जहाँ क्या हजार हो तो हजार तुझ पर निसार कर दूं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। तलबा का कहना था कि पाक फौज जदीद हथियारों से लेस और किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने की भरपूर सलाहियत रखती है। ख्वाजा कलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के तलबा ने जिन्ना हाउस का दौरा किया। रिपोर्ट कर रही हैं फरहाना खान। तालिब इल्मों के वफ्द ने 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की शदीद मजम्मत करते हुए इसे मुनज़्ज़म साजिश करार दिया। वफ्द ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के ज़ामिन है और पूरी कौम अपनी फ़ौज के साथ मुत्तहिद है। तालिब इल्मों ने शरपसंदों और सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। तमाम जिन्ना हाउस के तमाम चीज़ों को तोड़ फोड़ दिया गया और इसको जलाओ गिराओ किया गया। ये वाकई इसको हम हाईली कंडेम करते हैं। जो हमारे गवर्नमेंट है, वक्त गवर्नमेंट, उससे मेरी गुजारिश है कि इस तरह के वाक़यात को कंट्रोल किया जाए। कायदे आज़म की जो पर्सनल बिलोंगिंग्स थी उनको जलाया गया, उनकी पिक्चर्स थी, उनकी डिग्री थी, पासपोर्ट, सब कुछ जलाकर राख कर दिया गया। और हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि वो इन लोगों को, जो इनके मास्टरमाइंड है, उनको भी अवाम के सामने लेके आएँ और जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, किसी भी हाल में को छोड़ा ना जाए। जलाया गिरा हुआ 9 मई को उसकी मजम्मत करते हैं। जो भी इसमें शामिल थे उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और जिस तरह बाकी शहरों में जलाया गिराव किया, मजम्मत करते हैं कि उनको सख्त से सज़ा दी जाए। उनकी पर्सनल चीज़ें जलाई गई, पियानो जला दिया गया, यहाँ पे साड़ी तौर पर खींचेगी, जिसपे इस पूरे प्री प्लान के पीछे जो भी लोग हैं इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और हम इस चीज़ की खास मजम्मत करते हैं। वफ्द ने कहा कि बहैसियत कौम हमें अदम बर्दाश्त, शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी को रद्द करना होगा। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला के 65 विलेज और नेबरहुड काउंसिल की मुतअद्दिद खाली नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पोलिंग कल 27 अगस्त को होगी। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए 256 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें 102 पोलिंग स्टेशन मर्दों, 89 पोलिंग स्टेशन ख़वातीन और 65 मुश्तरका होंगे। मजमूई तौर पर 3,85,835 वोटर्स अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की हिदायत पर पुलिस ने सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात किए हैं। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। लांस नायक नज़ीर खान शहीद 30 अप्रैल 2019 को ऑपरेशन रद्दुल फसाद के दौरान ज़िला शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। लांस नायक नज़ीर खान के लवाहिकीन का कहना है कि शहीद वतन अजीज़ के दिफा की खातिर जान का नजराना पेश करके आने वाली नस्लों के लिए मशले राह बन गए। आपके साथ मिजाज करके ये सबको हंसाता था। मैंने शहीद लाया, बिल्कुल आंसू नहीं बहाया। औलाद है, याद आते हैं, बात हो गया तो यानी कि बाबा यानी फिक्र नहीं करो, हम आराम के साथ हैं, हम इज्जत के साथ हैं। घर आ गया तो बाबा वो पानी नहीं करो, जमींदारी नहीं करो, हम लोग आया छुट्टी खत्म होने तक हम लोग वो काम करेंगे। मौत हो तो शहीद की तरह होनी चाहिए। सत्य शहीद की बेवा होना मेरे लिए फख्र की बात है। मैं बहुत फख्र करती हूँ कि मैं शहीद की बेवा हूँ। ये हर किसी इंसान को नसीब नहीं होता। वो बहुत ही केयरिंग थे, बहुत लविंग थे, सबके साथ प्यार से रहते थे। लास्ट टाइम भी उसने मुझसे कहा कि जब मैं शहीद हो जाऊंगा तो आप फ़ख्र से झंडा उठाना। हर बार वो कॉल करते थे। वो अपने ऑपरेशन एरिया पहुंचने तक उसकी एक ही बात थी कि मेरे बेटे का ख्याल रखना। उसके ज़बान पे मेरे बेटा 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 ही था, बस उसने कहना था मेरा बेटे का ख्याल रखना। हमारा भाई सबसे डिफरेंट था, उसका नेचर भी, और जब वो सब के साथ बात करता था उसकी ज़बान में एक मिठास थी। जब वो हमें नाम से पुकारता था तो मेरा नाम फजल है, बट वो प्यार से फजलू बुलाता था मुझे। जब हमें पता चला कि रात को हमें पता चला कि टीवी पे हमने देख लिया कि भाई इस तरह हो गए हैं, तो तब से हमारे ऊपर हमारी क़यामत टूट पड़ी थी। मेरे मामू का सब बहनों के साथ अच्छा रिश्ता था और फिर सब के साथ फ्रेंडली पेश आता था और खुशी और मजाक के साथ पेश आता था। अपने माँ बाप का फीस ज़ाया नहीं करो, मेरी बहन की मेहनत ज़ाया नहीं करो, हर वक्त यही नसीहत थी।
मारूफ भारतीय माहिर कानून ने मोदी के शैतानी मंसूबे का पोल खोल दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट प्रशांत भूषण ने मोदी सरकार पर पुलवामा और बालाकोट 2 की रिपीट टेलीकास्ट का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि 2024 के इंतखाबात से पहले मोदी सरकार राम मंदिर अयोध्या पर जाली दहशतगर्द हमला करवाएगी और मलबा पाकिस्तान पर डालकर जंग की फजा बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इन मंसूबों की इत्तलात और ज़राए इंतहाई मुसद्दक़ा हैं कि बालाकोट की तर्ज पर भारतीय फ़ौज आज़ाद कश्मीर में जाली ज़मीनी कार्रवाई करके मोदी के इंतखाबात जीतने की राह हमवार करेगी। प्रशांत भूषण ने कहा कि इंतखाबात जीतने के लिए पाकिस्तान मुखालिफ बयान या जाली सर्जिकल स्ट्राइक और जंगी माहौल बनाने की मोदी सरकार की रवायत पुरानी है। मोदी सरकार ने 2019 में भी पुलवामा और जाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाकर इंतखाबात को मुतासिर किया था। सीनियर भारतीय कानूनदान ने इल्ज़ाम आयद किया कि मोदी इंतखाबात जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। इंतखाबात पर असरअंदाज होने का मंसूबा शुरू हो चुका। हरियाणा फसादात और महाराष्ट्र और रेलवे फायरिंग इसी मंसूबे का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले की इंक्वायरी रिपोर्ट 5 साल बाद भी मंजर-ए-आम पर नहीं आई। 11 इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को नज़रअंदाज और सत्यपाल मलिक को खामोश रहने का कहा गया है। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी मोदी सरकार का सियासी मकासद के लिए पुलवामा ड्रामे का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाने का एतराफ़ किया था। प्रशांत भूषण ने भारतीय मीडिया की मोदी नवाज पॉलिसियों पर भी कड़ी तनकीद की और कहा कि भारतीय अवाम मोदी सरकार के चुनाव जीतने के लिए अपनाए जाने वाले ओछे हथकंडों से बाखबर रहें। मोदी के सियासी अज़ाइम हिंदुस्तान को मणिपुर की तरह दो लख्त कर देंगे। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू व कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने लोगों से अपील की है कि वो तहरीक मुज़ाहमत की अलामत सैयद अली गिलानी की दूसरी बरसी पर शहीद कायद को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए 1 सितंबर को श्रीनगर के इलाके हैदरपुरा की तरफ मार्च करें। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत क़यादत ने कश्मीरियों की जारी जद्दोजहद में शहीद कायद की लाजवाल कुर्बानियों को उजागर करते हुए कहा कि सैयद अली गिलानी की कश्मीर के लिए जद्दोजहद को तारीख़ में सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। क़यादत ने कश्मीरी अवाम पर जोर दिया कि वो अजीम रहनुमा को उनकी बरसी के मौके पर खराज अक़ीदत पेश करने के लिए हैदरपुरा में उनकी कब्र पर जमा हों और उन्हें भरपूर खराज अक़ीदत पेश करें। शहदा तहरीक आज़ादी के हकीकी हीरो हैं। कश्मीरियों का फ़र्ज़ है कि वो अपने इन अजीम शहदा को शानदार खराज अक़ीदत पेश करें। बयान में उलमाए कराम और लोगों से भी अपील की गई है कि वो अजीम मज़ाहमती रहनुमा और दीगर शहदाए कश्मीर के लिए मसाजिद में खुसूसी दुआएं करें। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। एमनेस्टी इंटरनेशनल और इंसानी हुकूक की दीगर आलमी तंजीमों ने G20 ममालिक को ख़त लिख दिया। ख़त में G20 ममालिक से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियाँ बंद कराने के लिए किरदार अदा करने की अपील की गई है। G20 ममालिक 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली में सरबराही इजलास के लिए जमा हो रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल और दीगर तंजीमों ने ख़त में कहा है कि भारत ने मकबूजा इलाक़े में अपनी जाबराना पॉलिसियाँ जारी रखी हुई हैं। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हुर्रियत रहनुमा यूसुफ नसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। जी वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। फरमाइएगा कि मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से जारी जबर, इस्तबदाद और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हर हद कर चुकी हैं और पूरी दुनिया के साथ ये G20 ममालिक भी इससे बखूबी आगाह हैं और फिर इसके लिए ख़त भी लिख दिया गया है। मुस्तकबिल में आप क्या देखते हैं? जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। आज अगर आप उस जन्नत बेनज़ीर कश्मीर का तज़किरा फरमाएं जिसको कभी ईरान सगीर और कभी पैराडाइज ऑन अर्थ कहा गया था, आज अपने 100% आबादी के लिए इंट्रागेशन सेंटर कहें, बड़ी जेल कहें या जहन्नम कहें बना रखा है। हिंदुस्तान ने अपने नाजायज कब्जे को दुआम देने के लिए कोई कानून नहीं, कोई लॉ नहीं। और ये एक बड़ी खुशाइन बात है जिस तरह आपने फरमाया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और दीगर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो अब कुछ न कुछ कश्मीर पर कर रही है, लिख रही है और अपनी रिपोर्ट्स में भी बता रही है जो कुछ मैं और आप कह रहे हैं। आज का जिस खत का आप तज़किरा फरमा रहे हैं, G20 कंट्रीज जो हैं ये मैटर करती हैं दुनिया पॉलिटिक्स में, यूनाइटेड नेशन का आम हिस्सा भी हैं और फिर इनका इजलास दिल्ली में हो रहा है। इससे पहले भी इन्होंने कश्मीर में कोशिश की थी कि एक नाकाम इजलास किया जाए, लेकिन उसमें इम्पोर्टेंट कंट्रीज ने वहाँ मुताज़ा इलाके में इजलास करने से की वजह से शिरकत नहीं की और वो तकरीबन फेल हो गया। लेकिन आज जिस तरह खतूत उनको लिखे जा रहे हैं कि हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क था जिसमें बज़ाहिर आईन हिंद के मुताबिक लोगों के जो गारंटी थी हर चीज़ की, राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट, यानी हर एक जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं
वो उनकी गारंटी थी। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तो ये हिंदू स्टेट बनाने की तरफ जा रहे हैं, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी माइनॉरिटी महफूज नहीं। रियासत जम्मू व कश्मीर तो एक बड़ा इशू है, यूनाइटेड नेशन में तस्लीम शुदा इशू है, हक खुद इरादियत मुसलमा है, जिसको सारी दुनिया ने, हिंदुस्तान के समेत पाकिस्तान समेत सब ने माना है। लेकिन आज हिंदुस्तान को हिंदी हिंदुस्तान की तरफ ले जाया जा रहा है। लैंग्वेज हिंदी होगी, मजहब हिंदू होगा, दूसरा कोई वहाँ नहीं रह सकेगा। अब आप देखें वहाँ मुसलमान, हिंदुस्तान के अंदर भी दूसरी बड़ी आबादी मुसलमानों की है, उसके बाद आप देखें क्रिश्चियंस हैं, फिर सबसे बड़ी आबादी जो है वो हिंदू के अंदर तीसरी जात के हिंदू हैं। तो उन सबको मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है। तो इसको प्योरली एक हिंदू स्टेट बनाने की तरफ ये लोग जा रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि खुद हिंदुस्तान के साथ बीजेपी जुल्म कर रही है। और जहाँ तक इस खत का ताल्लुक है, ये बड़ी खुशाइन बात है। इसका आप अंदाजा कर सकते हैं कि कश्मीर के अंदर आज आपका सहाफी, आपका रेडियो, आपका टेलीविजन, आपका जज, आपका वकील, आपका सियासतदान, कोई शख्स भी बात नहीं कर सकता। वहाँ क्या है कि मार्शल लॉ है, एक डिप्टी गवर्नर की हुकूमत है, और जो सारी हुकूमत चला रहा है वो चला रहा है आर्मर फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट और पब्लिक सेफ्टी एक्ट की मदद से। तो लिहाजा यकीनन जब आप कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर को, जन्नत को जहन्नम बना रखा है कश्मीरियों के लिए काबिज अफवाज ने और उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर ने और फिर उनकी पॉलिसीज ने। तो मैं समझता हूँ कि ये जुल्म जो है ये अपनी इंतहा को पहुंच चुका है, और इंशाअल्लाह अब पूरी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता कश्मीरियों के हकूक के लिए भी, और हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटी के साथ जो जुल्म हो रहा है, अब क्रिश्चियंस के साथ हो रहा है, अमेरिका भी बोलेगा, अब यहूदियों के साथ हो रहा है, इसराइल भी बोलेगा जो उनका जिगरी दोस्त भी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब वो वक्त आ चुका है कि जब दुनिया को खड़े होकर इंसानी हकूक की बात करनी चाहिए, और कश्मीरियों के उनके हकूक और हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटीज के जो हकूक है उनकी बात करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया यूसुफ नसीम साहब आपका। भारत को यकीनन मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियों पर जवाब देना होगा, और इससे जो है वो इसका तदारुक भी करना होगा। मज़ीद खबरों की जाने पड़ेंगे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की यूनान आमद के मौके पर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की अपील पर मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। यूनान में मुकीम पाकिस्तानियों और कश्मीरियों की जानिब से दारुल-हुकूमत एथेंस के मुख्तलिफ मकामात पर अलामती एहतजाज किया जा रहा है। अवामी रद्द-ए-अमल के पेश नज़र नरेंद्र मोदी को सख्त सिक्योरिटी फराहम की गई है। यूनान की शहरी इंतजामिया की जानिब से एथेंस में एहतजाजी मुजाहरों पर 24 घंटों की पाबंदी लगा दी गई है। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के तर्जुमान का कहना था कि मजलूम कश्मीरियों की अखलाकी मदद जारी रखेंगे। भारतीय रियासत तमिलनाडु में ट्रेन में आग लगने से 10 अफराद हलाक और 20 जख्मी हो गए। हादसा मदुराई रेलवे स्टेशन के करीब खड़ी सियाहती ट्रेन में पेश आया। हुकाम के मुताबिक ट्रेन में यात्री सवार थे जो लखनऊ से रामेश्वरम जा रहे थे। इब्तदाई तहकीकात से मालूम हुआ है कि एक मुसाफिर पाबंदी के बावजूद गैस सिलेंडर ट्रेन में साथ लेकर सफ़र कर रहा था। मुसाफिर ने चाय बनाने के लिए जैसे ही चूल्हा जलाया तो सिलेंडर धमाके से फट गया। अफ्रीकी मुल्क मडगास्कर के नेशनल स्टेडियम में भगदड़ मचने से 12 अफराद हलाक और 80 जख्मी हो गए। खबरसां इदारों के मुताबिक भगदड़ उस वक्त मची जब हज़ारों शायकीन ने इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स की इफ्ताही तकरीब में शिरकत के लिए स्टेडियम में दाखिल होने की कोशिश की। मडगास्कर के वज़ीर आज़म क्रिश्चियन एंटसे ने बताया कि जख्मियों में से 11 की हालत तशवीशनाक है। ताहाल भगदड़ की वजह मालूम नहीं हो सकी। अफ्रीकी मुल्क नाइजर और फ्रांस के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद कशीदा हो गए। नाइजर के दारुल हुकूमत नियामी में सैकड़ों मुजाहिरीन ने फ्रांसीसी फौजी अड्डे के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने फ्रांसीसी फौजियों को एक हफ्ते के अंदर मुल्क से निकलने का अल्टीमेटम देते हुए मुल्क न छोड़ने की सूरत में फौजी तनसीब पर धावा बोलने की धमकी भी दी। इससे कबल नाइजर हुकूमत ने फ्रांसीसी सफ़ीर को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था। नाइजर की वजारत खारिजा के मुताबिक फ्रांसीसी सफ़ीर को नाइजर के वज़ीर खारिजा से मुलाकात की दावत ठुकराने और फ्रांस की जानिब से नाइजर के मफादात के मुनाफी इक़दामात पर मुल्क बदर करने का फैसला किया गया है। इटली के शहर मिलान में गर्मी का 260 साला रिकॉर्ड टूट गया। मिलान में दर्जा हरारत 33 डिग्री की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, जो 1763 के बाद बुलंद तरीन दर्जा हरारत है। 11 अगस्त 2003 को मिलान में दर्जा हरारत 32.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। इटली के महकमे मौसमियात के मुताबिक मिलान के आसपास इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रहा। जंगलात की आग की वजह से जनूबी यूरोप बेशतर हिस्सा मुसलसल गर्म है। यूनान, स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस समेत कई ममालिक में 40 डिग्री दर्जा हरारत हो चुका है।
اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت میں گریڈ 21 اور 22 کے سرکاری ملازمین کو میرٹ لسٹ کے بغیر رہائش گاہوں کی الاٹمنٹ کے کیس میں وفاقی حکومت کو اگلی سماعت تک الاٹمنٹ سے روک دیا ہے۔ عدالت نے وزارت ہاؤسنگ اور وزارت قانون کے سیکرٹریز کو 1 ستمبر کو طلب کر لیا ہے۔ جسٹس بابر ستار نے 11 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کیا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت پر اہم عہدوں پر فائز منظور نظر سرونٹس کو میرٹ لسٹ نظر انداز کر کے الاٹمنٹس کرنے کا الزام ہے۔ عدالت نے وفاقی حکومت سے رپورٹ طلب کی کہ بتائیں کن رولز کے تحت الاٹمنٹس کی گئیں۔ حکم نامے کے مطابق وزارت ہاؤسنگ کی رپورٹ میں وہ تمام معلومات ہی فراہم نہیں کی گئیں جو عدالت نے مانگی تھیں۔ بادی النظر میں فراہم کی گئی انفارمیشن عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے۔ عدالتی ہدایات کے مطابق سیکرٹری وزارت ہاؤسنگ کا بیان حلفی جمع ہی نہیں کرایا گیا۔ بتایا گیا کہ نئے سیکرٹری ہاؤسنگ نے چارج سنبھالا ہے جن کی طبیعت آج ٹھیک نہیں ہے۔ سیکرٹری ہاؤسنگ آئندہ سماعت پر خود پیش ہوں اور عدالتی سوالوں کا جواب دیں۔ سیکرٹری ہاؤسنگ دوبارہ رپورٹ جمع کروائیں اور بیان حلفی دیں کہ فراہم کردہ معلومات مکمل اور درست ہیں۔ اسکردو میں منعقد ہونے والے 2 روزہ کسان میلے کا اختتام ہوا۔ اپنی نوعیت کے پہلے کسان میلے میں بلتستان بھر سے کسان کوآپریٹیو سوسائٹیز نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنے علاقوں کی سوغات کے سٹال سجائے۔ مقامی میوہ جات، خوبانی، شہتوت، اخروٹ، بادام کے علاوہ سبزی جات اور گھریلو دستکاری میں تیار شدہ اشیاء کے سٹالز لگائے گئے تھے۔ سٹالز میں مقامی افراد کے علاوہ غیر ملکی مہمانوں نے دلچسپی لی۔ ملک سے بے روزگاری کے خاتمے اور ہنرمند افرادی قوت تیار کرنے کے لیے وفاقی حکومت کے پروگرام کے تحت آزاد کشمیر میں بھی تربیتی کورسز کا اجرا کر دیا گیا ہے۔ مظفر آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں عدیل احمد خان۔ نیشنل ویکیشن ٹریننگ کمیشن کے زیر اہتمام شروع کیے گئے پروگرام سے آزاد کشمیر کے ہزاروں نوجوان بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ نیشنل ویکیشن ٹریننگ کمیشن کی جانب سے آزاد کشمیر میں نجی اداروں کو فنڈز فراہم کیے گئے ہیں۔ آئی ٹی، ایمیزون، سائبر سیکیورٹی، آفس آٹومیشن، ہوٹل مینجمنٹ، بیوٹی سلون اور فنی مہارتوں کے درجنوں دیگر کورسز بھی کروائے جا رہے ہیں۔ ان تربیتی سیشنز کو باراور بنانے اور ان میں شفافیت کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے نیشنل ووکیشنل ٹریننگ کمیشن کے حکام ہر ادارے میں جا کر خود معائنہ کر رہے ہیں۔ مظفر آباد کے ایک نجی ادارے میں معائنے کے دوران نیشنل ٹریننگ کمیشن کے نائب ناظم ملک محمد احمد نے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو بتایا کہ یہ کورسز نہ صرف طلباء کو حصول ملازمت میں مدد دے رہے ہیں بلکہ نئے کاروبار کو شروع کرنے اور ملازمت کے نئے مواقع پیدا کر کے معاشی ترقی کو فروغ دینے میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں انہی کورسز کا اجرا کیا جا چکا ہے۔ ہزاروں طلباء و طالبات پیشہ ورانہ مہارتوں کی تربیتی کورسز میں حصہ لے رہے ہیں۔ اب اسٹوڈنٹ یہ چیز سیکھ کے اس کے بعد آن لائن لرننگ بھی کر سکتے ہیں، آف لائن بھی کر سکتے ہیں، تو یہ بڑا بینیفٹ ہے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ اگر آپ اس کو اچھے سے سیکھیں گے، اس میں اپنی جو سکلز ہیں ان کو انہانس کریں تو آپ آگے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ پیشہ ورانہ مہارتوں کے تربیتی کورسز کے ذریعے ہنرمند افرادی قوت پیدا کر کے بے روزگاری میں کمی کے ساتھ ساتھ ملکی معیشت کو بہتر بنانے میں بھی مدد ملے گی۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد۔ آم کو پھلوں کا سردار کہا جاتا ہے اور آم کی قسم چونسا کو آموں کا سردار کہتے ہیں۔ جنوبی پنجاب کا گیٹ وے اور اہم زرعی شہر خانیوال خوش ذائقہ لذیذ آم کی پیداوار کی وجہ سے نہ صرف ملک میں بلکہ دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ مزید تفصیل خانیوال سے قلزم بشیر احمد کی اس رپورٹ میں۔ خانیوال جنوبی پنجاب کا اہم ضلع ہے جہاں 50,000 سے زائد ایکڑ پر آم کے باغات ہیں۔ انور اٹول، دوسری، لنگڑا، فجری، سمر بہش، شان خدا، مالدہ، سفید چونسا، لیٹ چونسا اور کالا چونسا سمیت دیگر ورائٹی کے آم خانیوال میں کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ آم کی توڑائی کے بعد اس کی گریڈنگ کی جاتی ہے اور خوش ذائقہ اور لذت سے بھرپور آم سعودی عرب، دبئی، مڈل ایسٹ کے دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ یورپ اور امریکہ میں بھی ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں، جبکہ آم کے سیزن میں آموں کو بڑے اہتمام کے ساتھ پیکنگ کے بعد ملک بھر میں اپنے دوستوں اور عزیزوں کو بطور گفٹ بھیجا جاتا ہے۔ آج ہم بھی یہاں سے آم خریدنے کے بعد اپنے دوستوں کو جو ہے وہ آم بھجوا رہے ہیں۔ مینگو گروورز کے مطابق اگر حکومت سیزن میں گروورز کو سہولیات فراہم کرے تو نہ صرف وہ نئی منڈیاں تلاش کر کے امپورٹ ایکسپورٹ میں اضافہ کر سکتے ہیں بلکہ زیادہ منافع کما سکتے ہیں۔ ہمارے جو علاقے کا آم ہے دنیا بھر میں مشہور ہے، ٹیسٹ کے لحاظ سے بھی اور کوالٹی کے لحاظ سے بھی۔ ہمارے جو باغات ہیں ان میں اعلیٰ ایکسپورٹ کوالٹی کے آم پائے جاتے ہیں۔ یہ ہمیں کوئی سہولتیں فراہم کرتے تو یہ بہت وسیع عام زر مبادلہ پاکستان کو کما کے دے سکتا ہے۔ اعلیٰ یہ مڈل ایسٹ میں جاتا ہے، یورپ کنٹری میں جاتا ہے اور ایران جاتا ہے، سعودیہ میں جاتا ہے، یو کے میں جاتا ہے۔ بھائی ہم جو یہ آم بھر رہے ہیں کوئٹہ کا مال ہے، یہ ادھر سے ایران جائے گا اور دبئی جائے گا یا دوسرے ملک میں جائے گا۔ پاکستانی آم دنیا بھر میں بھیج کر زیادہ زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے۔
कुलजम बशीर अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, खानेवाल। और अब आप मुलाहिजा करेंगे मौसम की सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाजरीन, बादलों की आंख मचोली जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में आज मज़ीद बारिश का इम्कान है। तेज़ हवाएं आंधी का रूप भी धार सकती हैं। मौसम की क्या अदा रहने वाली है, मौसम का अहवाल मज़ीद जानते हैं मरियम मलिक से। भादों फिर बरसने को तैयार। शहर इक़्तिदार में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। महकमा मौसमियात ने गरज चमक के साथ तेज बारिश की पेशगोई कर दी। हफ्ते के रोज खित्ता पोठोहार, इस्लामाबाद, पंजाब, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। ताहम मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। हफ्ते के बाद इतवार के रोज भी खित्ता पोठोहार, इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर समेत मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश मुतवक्की है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक लाहौर के इलाके में 75 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल।